Hello everyone. If you are also struggling in the history, then this video is for you. I will explain you in the more precise way and in easy language so that you people can understand, and I'll make sure that you will be able to attempt each and every question of this chapter after reading from me. So let's start by the line by line reading of the NCRT textbook, because you also know that the paper or it is important for your CUT as well as your boards also, because the questions are picked directly from the NCRT lines. So let us start. So Harappan seal, basically in this paragraph we will discuss about the Harappan seal के बारे में हम पढ़ेंगे. So Harappan seal, as you can see in this picture also, like Harappan seal there is a description of animal. यहाँ आपको animal दिखाई दे रहा है, ऊपर there are certain signs that are still undeciphered. बड़ी ही अजीब सी बात है, लेकिन इतने सालों बाद भी we are still struggling टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ दीज साइंस एंड सिम्बल्स. आज भी हमें पता नहीं कर पाया कि इन साइन सिम्बल्स का मीनिंग क्या है, क्या ये हड़प्पन सील कन्वे कर रही है. तो शायद मुझे उम्मीद है, या फिर एज अ ह्यूमैनिटी student also, I also was in the humanity, so I hope that in the future our books will be updated and we will come to know about these Harappan script, because and I hope that among you also the people will try to decipher it. Now if you look at the Harappan seal, that it is a distinctive artifact of this civilization. यानी बहुत कॉमन सिंबल अगर हम देखें तो इस पूरे इलाके में, जो हमें या पूरी इस हड़प्पन रीजन में, तो यहाँ पर हमें हड़प्पन सील बहुत कॉमन दिखाई देता है, एक कॉमन आर्टिफैक्ट की तरह दिखाई देता है. और इस सिविलाइजेशन जिसकी हम बात करेंगे, इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. यू हैव स्टडीड अर्लियर ऑल्सो, देयर इज़ अ रिवर इंडस एंड मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इट लाइज इन द पाकिस्तान. ज़्यादातर हिस्सा पाकिस्तान में है. तो ये जो पूरी सभ्यता थी वो लगभग इसी इंडस रिवर के इर्द गिर्द फ्लैरिश की. और एक रीज़न होता है, क्योंकि रिवर जो है is a best source of the water, and for the survival the water is necessary. So that is why most of the civilization, if we look at, then these are basically flourished near the source of the water, earliest civilization also. Now the features of these seals, you can come in the exam also, that what are the features of Harappan seal. So it is made up of stone called statite. It is a name of a stone, and seals like this contain the animal motifs and signs from a script that remain undeciphered. I have already told you that these seals contain the animal and the script. It is a script, the signs that you can see, these, that is basically the signs of the Harappan seal, Harappan script, that are still undeciphered. Undeciphered means something which is not revealed, when we don't know the meaning of something. So yet we know great deal about the life of the people who lived in the region from what they left behind, but still we know about many things about the people, what they used to practice. वो क्या करते थे, किन एक्टिविटीज़ में इंगेज थे. एग्रीकल्चर था तो कैसा एग्रीकल्चर था, क्या वो ऑक्यूपेशन के लिए करते थे, क्या वो सब्सिस्टेंस पे ही, क्या वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग करते थे, या फिर ट्रेड भी होता था. तो वी नो मैनी थिंग अबाउट द पीपल, हम बहुत सारी चीज़ जानते हैं, लेकिन इसमें हड़प्पन सील से हमें आज तक कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है. मोस्ट ऑफ आर सोर्स, जो हमारा सोर्स है इन्फॉर्मेशन का, दैट इज़ द रिमेन्स, जो रिमेन्स रह गए, शायद दफन हो गए इतने सभ्यता में. तो एक्सकेवेशंस के बाद हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, एक टूल्स हो गए, सील्स हो गई, हाउस पॉट्स, ऑर्नामेंट. फ्रॉम दीज थिंग्स वी कम टू नो अबाउट मैनी थिंग अबाउट द पीपल. Let us see what we know about the Harappan civilization and how we know about. We explore how archaeological material is interpreted and how interpretation sometimes change. Of course, there are some aspects of civilization that are yet unknown and may even remain so. So, in this chapter, we will see some interpretations. क्योंकि आप you have studied in science also, that in class 9th you studied about atoms and molecules. So, a person, first Rutherford gave the model, J.J. Thomson, then his interpretations were changed by Rutherford, then his interpretations were changed by I think Bohr. So with the passage of time एंड विद द न्यू टेक्नोलॉजी इंटरप्रिटेशन चेंज होती है. तो वैसे ही हम हड़प्पन सिविलाइजेशन में स्टडी करेंगे कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये इंटरप्रिटेशन चेंज होती है. सो हम इस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, काफ़ी चीज़ें हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हम जिनसे अवगत नहीं है, और शायद भविष्य में भी रहें. लेकिन मैं हमेशा होप रखता हूँ कि पीपल अमंग यू, आप में से ही कुछ लोग इस फील्ड में जाएं, बिकॉज इट्स अ गुड फील्ड. आई हैव वेरी मच इंटरेस्ट इन दिस आर्कियोलॉजिकल, be in archaeology, so that's a good course, and from where we can look at all these things. Now certain terminologies, place and time. I've already told you that this civilization called Indus Valley civilization, and you can get the question like in MCQ also. Now you must know the time period of the civilization. Like
this civilization flourished from 2600 BCE to 1900 BC. Now, if you don't know the meaning of the BC and CE, then I'll tell you. Now, this is a time standard that we have set. Suppose there is a line, this type of line, and at this particular time, the Christ was born. Let us suppose this was the time period when the Christ was born. So all the time period before this we called before Christ, and before the birth of Christ, that is BC, and the time period after the birth of Christ, that is called CE, that is called Common Era, and it is called AD also, that is Anno Domini. So I hope that you will not be confused after this, and if you're still struggling, then I will make a separate video on this also. Now the time period you must remember is 2600 to 1900. Then now it is a most prosperous phase. Now we'll discuss Harappan civilization. We discussed that flourished near the river Indus, but there is a certain time period. If we are discussing from 2600 to 1900, it is a main time period when this civilization अपने पीक पे थी. ये ऐसा टाइम पीरियड था 2600 से लेकर 1900 तक का, जब ये सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी. लेकिन इससे पहले भी एक सभ्यता एग्जिस्ट करती थी. हड़प्पन सिविलाइजेशन हम बोल रहे हैं, लेकिन उस टाइम पीरियड को बोले मैच्योर हड़प्पा. आई विल ट्राई टू मेक इट सिंपलर फॉर यू पीपल. लाइक कंसिडर, we are dividing the civilization in three parts: early, mature, and later. Now this is early civilization. Before early civilization, many new technologies, trade was not very much expanded. The civilization existed, मतलब people थे, लेकिन इतनी एडवांस टेक्निक्स, इतने ब्रिक्स का एक बढ़िया तरीके से इस्तेमाल करना, ट्रेड करना, वो ज़्यादा पॉपुलर नहीं था. लेकिन अगर हम मैच्योर सिविलाइजेशन की बात करें, 2600 से लेकर 1900 तक का जो टाइम पीरियड है, इन दिस टाइम पीरियड सिविलाइजेशन अपने पीक पे थी, जहाँ पर ट्रेड बहुत ज़्यादा था, प्रॉस्पेरिटी थी. और जो लेटर फेज है आफ्टर 1900 के बाद का जो टाइम पीरियड है, वहाँ से सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया. बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं जो हम डिस्कस करेंगे कैसे दिस प्रॉस्परस सिविलाइजेशन, दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन एंडेड, वो कोलैप्स कर गई. Now the distinctive Harappan pottery, the bricks, seals, weight, beads, copper, bronze belong to the Harappan civilization have been found in the region Afghanistan, Balochistan, Sindh, Punjab, province of Pakistan, and Indian state of Jammu and Kashmir, Punjab, Haryana, Rajasthan, UP, Gujarat, Maharashtra. Now this civilization was not only spread in this Indian subcontinent but stretched from Afghanistan to your Gujarat. We have found the evidences, like we have found the copper, bronze, and many articles which are listed here. So in these regions this civilization was spread out. Now here also you are giving certain words like BP stand for before present. It is same for CE that we have discussed. BCE, it is same. BC before common era, CE that is common era. Now if it is written like this, in the paragraph also it is given, I think. No. So if it is written like B, C, E and C, that it is means it is approximate. This small c means yes, we are not certain about time period, so we write it approximate. Now here it is source Harappan settlement. Now in this entire subcontinent still we have found 2000. Currently we have 2000 Harappan sites in this Indian subcontinent, and most of these sites are between the Indus and Saraswati river basin, because I have already told you that water is the source of living. Without it no one can survive. That most of these settlements are near the source of water. इसलिए ज़्यादा civilization जो है पानी के सोर्स के आसपास होती थी. Nearly 2/3 of the sea settlements are in the Saraswati basin. लगभग इसमें से 2/3 जो civilization है वो सरस्वती बेसिन के आसपास दिखाई देती है, suggesting that its immense importance for the Harappan civilization. Among these 5 major cities have been identified. These are Rakhigarhi, Mohenjo-daro, Harappan, Dholavira and Ganevali. Now the remaining sites come under different categories such as regional center, agriculture village, ports, manufacturing centers. तो major sites जो हमें यहाँ से मिलती हैं वो है राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धोलावीरा और गनवेरीवाला. Now let us start beginning. Now in this paragraph we will study about the early civilization. What time period? देखिए हड़प्पन civilization में already told you that from 2600 to 1900.
it was at its peak, and before 2600 it was not very much advanced, and after 1900 it started declining. So we will discussing about the time period before 2600. Now in BCE, if this time period is later one 1900 and 2600 is earlier one. Now there were several archaeological cultures in the region prior to the mature Harappa. Even before the mature Harappan civilization, several culture existed. लोग exist करते थे, उनका एक culture था जो इस mature Harappan civilization पहले exist करता था. These culture were associated with distinct pottery, evidence of agriculture and pastoralism, some craft. इस culture में हमें क्या दिखाई देता है कि distinctive pottery थी. यहाँ की जो pottery है वो भी आपको अलग ही दिखाई देगी. एक परफेक्ट ज्योमेट्री के साथ एक आपको पॉटरी यहाँ पर दिखाई देगी. यहाँ पर एग्रीकल्चर के हमें एविडेंस मिलते हैं. पेस्टोरलिज्म मीन्स जो चरवाहे होते हैं, क्योंकि एट दैट टाइम एग्रीकल्चर और पेस्टोरलिज्म, लेकिन ये मेन सोर्स है, लेकिन क्राफ्ट में भी लोगों का इंगेजमेंट हमें दिखाई देता है. तो एट दैट टाइम इट वॉज देयर, बट स्टिल इट वॉज नॉट वेरी मच एडवांस. नाउ सेटलमेंट वॉज जनरली स्मॉल, बहुत बड़ी बड़ी सेटलमेंट्स नहीं थी. एंड देवर वर्चुअली नो लार्ज बिल्डिंग, जैसी हमें मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन में दिखाई देती है. लाइक हम सिटाडेल की बात करते हैं, हम लोअर टाउन की बात करते हैं, तो ऐसी कोई मेजर बिल्डिंग हमें इस अर्ली फेज में दिखाई नहीं देती सिविलाइजेशन के. द रीसेंट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑल्सो इंडिकेट द इमर्जेंस ऑफ हड़प्पन कल्चर फ्रॉम अर्ली फ्रेमिंग कम्युनिटीज डेटेड अराउंड 7000 BCE. नाउ पता चलता है हमें कि अर्लीस्ट अगर एविडेंसेस की बात करें पुराने से पुराना, तो हमें 7000 BCE में हम ट्रेस कर सकते हैं इस सिविलाइजेशन के बिगिनिंग के निशान. अगर हम बात करें तो हमें एक बिल्डिंग जो है वो 7000 BCE टाइम पे ट्रेस होती है. नाउ यू कैन इमेजिन हाउ ओल्ड दिस सिविलाइजेशन वाज. हम एस्टिमेट ही तो लगा रहे हैं, इट इज फ्रॉम 2600 to 1900, बट इट वॉज वेरी मच ओल्ड सिविलाइजेशन. Now the urban phase, that is mature Harappan, was a consequent result of the gradual transformation and internal development of the civilization during the early Harappan phase. अब देखिए, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन कोलैप्स कर जाती है तो उसके बाद जो दुनिया है या जो वर्ल्ड है वो इनिशियल लेवल से स्टार्ट करता है, रूरल लेवल से, एग्रीकल्चर लेवल से. लेकिन इसके अर्ली फेज में ही एग्रीकल्चर की शुरुआत हो चुकी थी. तो धीरे धीरे जो ट्रांसफॉर्मेशन था वो अर्बन फेज में जा रहा था. धीरे धीरे अर्बनाइजेशन हुआ एंड देन एक मैच्योर हड़प्पन सिविलाइजेशन का फेज शुरू होने लग गया. तो सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज. नाउ सबसिस्टेंस का हेयर मीन्स द वे दे यूज टू सर्वाइव, कैसे वो अपनी जीविका को पूरे करने के लिए, कह सकते हैं अपनी जीने के लिए, वॉट वर द स्ट्रैटेजीज द यूज टू, बिकॉज फॉर लिविंग वन रिक्वायर्स फूड. फूड का सोर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लिविंग. सो हाउ दे यूज टू ऑब्टेन दीज थिंग्स, हाउ दे गेट देयर फूड, वेदर दे वर द हंटर गैदरर्स or whether they used to practice agriculture also. So we will discuss about all these things. So if you look at map 1 and 2, you will notice that the mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan culture. अगर आप मैप को केयरफुली एग्जिस्ट कर देंगे, suppose that I'll try to suppose this is suppose this is the map of Harappan civilization, though it is not good one, but for understanding you can take. Now this is the area of early Harappan civilization. Let us suppose here the early civilization existed. Now जो नई civilization फ्लॉरिश कर रही थी वो भी इन रीजन्स में फ्लॉरिश हो रही थी. ऐसा नहीं था कि जो अब नई सिविलाइजेशन है वो एक अलग इलाके में फ्लॉरिश हो रही है. नो, ये जो लेटर सिविलाइजेशन थी दैट वाज बीइंग फ्लरिश्ड इन दीज रीजन्स ऑल्सो, अर्ली सिविलाइजेशन रीजन्स में. क्यों? क्योंकि अब एक टाइम पे जब अब एग्रीकल्चर, देखिए किसी भी ग्रोथ का जो एक सोर्स होता है वो एग्रीकल्चर होता है. एक टाइम पे एग्रीकल्चर होता है, देन सरप्लस होता है, एंड देन इट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टाउन, मार्केट एंड ऑल दैट. शुरुआत जो है एग्रीकल्चर से होती है. तो शुरुआत तो हो चुकी थी अर्ली सिविलाइजेशन में. अब मैच्योर फेज आने वाला था, तो मैच्योर फेज वहीं पर शुरुआत हुआ जहाँ पर अर्ली फेज था. So please try to understand this, and if you have any problem then write in the comment section. So these culture also shared certain common elements including subsistence strategies. मतलब जो पहले strategies थी, कुछ strategies अभी भी वैसे ही follow की जा रही थी. The Harappans ate wide range of plants and animal product including the fish. So from here you can get the question कि what were the subsistence strategies used by the Harappans. So you can make the points from here also, like they प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स को ईट करते थे. इसमें हमें फिश का भी एग्जाम्पल मिलता है. मतलब
They were dependent upon the nature and we are still also. The archaeologists have been able to reconstruct dietary practices from the finds of charred grains and the seeds. Now from where we come to now, हमें पता चलता है dietary practices से. हम जब excavations करते हैं तब हमें remains मिले हैं, remnants मिले हैं charred grains से. Charred मतलब it means भुने हुए, charred grains. और से आई वुड से फायर्ड ग्रेन्स, जले हुए हमें ग्रेन्स के अवशेष यहाँ पर मिलते हैं, जिससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि दे पीपल यूज टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर ऑल्सो, कल्टिवेशन करते थे. एंड दीज आर स्टडीड बाय आर्कोबोटानिस्ट. नाउ इफ यू लुक एट द सैम्पल पेपर, सो देयर यू हैव गॉट द क्वेश्चन हु आर आर्कोबोटानिस्ट एंड हु आर आर्कोजूलॉजिस्ट. सो बोटानिस्ट मीन्स दोज पीपल हु स्टडी अबाउट प्लांट्स. प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. बोटानिस्ट means those who study plants, and zoologist means you can understand from the word zoo also. zoo में एनिमल तो रखते हैं, प्लांट थोड़ा ना रखते हैं. that is animal. So they studied archaeobotanist, archaeogeologist, they studied about all these things. Now अब कुछ क्रॉप्स के हमें एविडेंसेस मिलते हैं जो अभी आपको पता होना चाहिए, like wheat, barley, lentil, chickpea and sesame. तो these are the crops that we found from, जिनके evidences हमें वहाँ से मिलते हैं. Now millets are found from sites in Gujarat. Millets का अब यहाँ पर आपको क्वेश्चन बन जाते हैं. ऐसे ही फ्रॉम NCERT डायरेक्ट लाइन से क्वेश्चन बनेंगे. मिलेट्स जो है उनका एविडेंसेस हमें गुजरात से मिलता है. तो यू कैन कम अक्रॉस दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो मिलेट्स आर बेसिकली फ्रॉम द गुजरात. द फाइंड्स ऑफ राइस आर रिलेटिवली रेयर. राइस के एविडेंसेस हमें बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं जो रीजन है इतनी ज़्यादा रेनफॉल यहाँ पर नहीं होती, जिसकी वजह से राइस का कल्टीवेशन आई डोंट थिंक सो इतना होता है. सो एनिमल बॉन्स हमें यहाँ पर मिलती हैं, लाइक कैटल की, शेप की, गॉड, बफेलो, पिग, इन सब के एनिमल बॉन्स में हमें यहाँ से मिलते हैं. इससे पता चलता है कि वो एनिमल प्रोडक्ट्स बीट करते थे. हमने फिश का एग्जाम्पल पीछे देखा है. तो इन्हें स्टडी किया था आर्कोजूलॉजिस्ट के द्वारा, यानी जो एनिमल्स की स्टडी करते हैं. ना अब हमें ये तो पता चलता है कि जब बॉन्स मिलती हैं, कैटल की मिली हैं, शिप की, गोट की, बफेलो की, पिग की, तो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, यानी वो डोमेस्टिकेशन करते थे. दे यूज टू रियर द एनिमल, वो जानवर को पाला करते थे. तो ये इंडिकेट करता है कि एनिमल्स वर डोमेस्टिकेटेड. ना बॉन्स ऑफ वाइल्ड स्पीशीज, अब हमें कुछ जंगली जानवरों की भी हड्डियाँ मिलती हैं. ठीक है, लाइक हम बोर की बात करें, डियर की, घड़ियाल की, तो ये भी मिलती है. अब हमें नहीं पता क्या वो खुद शिकार किया करते थे या फिर कोई और हंटिंग कम्युनिटी होती थी जिससे वो मारने के बाद उससे उससे एज अ फूड इस्तेमाल करते थे. इस बारे में हम सर्टेन नहीं हैं. सो वी डू नॉट नो वेदर हरप्पन्स हंटेड दीज एनिमल्स, क्या वो अपने आप हंट करते थे और ऑब्टेन द मीट फ्रॉम अदर हंटिंग कम्युनिटी, और किसी और हंटिंग कम्युनिटी से मीट को ऑब्टेन करते थे. वी आर नॉट श्योर. लेकिन हमें बॉन्स मिलती हैं, फिश की और फॉल की भी यहाँ पर मिलती हैं. कुछ एनिमल्स की मिलती हैं जो कि वाइल्ड स्पीशीज़ हैं, जो कि जंगली जानवर है, तो उनका डोमेस्टिकेशन से तो कोई लेना देना नहीं हुआ. अब टेक्नोलॉजी, अब हम कम टू द एग्रीकल्चर. क्या एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस किया? क्या अब हमें ये तो पता है, हमें चेयर्ड ग्रेन्स के रिमेन्स मिले हैं, तो इसका मतलब एग्रीकल्चर तो प्रैक्टिस किया जाता है ना. अब सम अदर एविडेंसेस, लाइक हमें फाइंड्स मिलते हैं ग्रेन्स के. हमने पीछे डिस्कस किया कि वी फाइंड्स ऑफ द ग्रेन, ये इंडिकेट करता है कि एग्रीकल्चर वाज प्रैक्टिस एट दैट टाइम. नाउ आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली दिस. तो फाइंड्स ऑफ ग्रेन हमें जो मिलते हैं वहाँ पर, तो इससे पता चलता है दैट एग्रीकल्चर वाज वेरी मच प्रिवलेंट ड्यूरिंग दिस टाइम. नाउ व्हाट सीड ब्रॉडकास्ट ऑन द प्लॉफ लैंड. अब क्या हाथों से वो बीज उकेरते थे खेत में, या फिर वो एक ड्रिल मशीन का इस्तेमाल करते थे. ड्रिल, यू विल स्टडी अबाउट इट, जिसमें ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया जाता है. मतलब लाइक दिस इज़ द, आई वुड से, आई हैव टू यूज़ अ पैन फॉर इट. लाइक इट इज़ दिस एंड देयर इज़ अ फार्मर हु सिट्स ओवर दिस. फार्मर यहाँ पर रहता है. देन एंड देयर आर सर्टेन लाइक दिस बैल, ऐसे ही, मतलब समथिंग लाइक दिस. ड्रिल का इस्तेमाल किया जाता है, तो जहाँ पर ये बीज उकेरने के लिए, तो क्या इसका इस्तेमाल करते थे या फिर वो मैनुअली बीज बोया करते थे, तो इस चीज़ों के बारे में नहीं पता.
रिप्रेजेंटेशन ऑन सील एंड टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेटेड बुल वाज नॉन। अब बहुत सारी आपको ऐसी सील दिखाई देगी जहाँ पर आपको उनके ऊपर बुल दिखाई देगा, बुल का सिंबल दिखाई देगा, साइन दिखाई देगा। ये हमें इंडिकेट करता है कि ऑक्सन उस टाइम पे प्रेजेंट थे, बुल वर प्रेजेंट एट दैट टाइम, बुल को जानते थे। एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्स्ट्रापोलेट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वर यूज फॉर प्लफिंग। अब हमें नहीं पता, उन्होंने उससे इंडिकेट किया है, उससे इंटरप्रेट कर रहे हैं कि शायद उनका इस्तेमाल प्लफिंग के लिए किया जाता होगा, बट वी आर नॉट सर्टेन अगेन। नाउ moreover, terracotta model of plough have been found in the Cholistan and at Banavali, हरियाणा। Now आपको एविडेंसेस मिलते हैं प्लॉ के, कहाँ पर? चौलिस्तान में और बनावली में। प्लॉ फील्ड के एविडेंसेस आपको चौलिस्तान और बनावली में दिखाई देंगे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि एग्रीकल्चर जो था वो काफ़ी ज़्यादा प्रेवलेंट था उस टाइम पे, क्योंकि अगर प्लॉ अगर आपको हल के अवशेष मिल रहे हैं तो हल और किसके लिए इस्तेमाल होगा? एग्रीकल्चर के लिए तो इस्तेमाल होता है। Now archaeologists have also found the evidences of plough field at the कालीबंगन। अब उन्हें एक जुते हुए खेत की, यानी जो खेत पहले से जोत रखा है, उसके एविडेंसेस उन्हें मिलते हैं कालीबंगन राजस्थान से। That is also important for one marker. You can get कि पहले एविडेंसेस कहाँ मिले थे प्लॉ के, तो आपको चौलिस्तान और बनावली में मिले थे, दोनों ही साइड आपकी हरियाणा में है। और आपको प्लॉ फील्ड के एविडेंसेस मिलते हैं कालीबंगन राजस्थान में। तो यू कैन गेट द क्वेश्चन। नाउ the field had two set of furrows at the right angles to each other, suggesting two crops were grown together. Now अब जो हमें फरोज मिले हैं या जो हम प्लॉ फील्ड के एविडेंसेस मिले हैं, उन्हें कुछ ऐसा मिल रहा है कि मान लीजिए ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। तो ये जो फरोज हैं हमें राइट एंगल पे मिले हैं, जिससे हमें सजेस्ट करता है कि शायद वो दो फसल उगाते होंगे एक साथ। मल्टी क्रॉपिंग दे यूज टू प्रैक्टिस, दे यूज टू ग्रो टू क्रॉप्स इन अ ईयर। तो शायद इससे पता चलता है हमें। वी आर नॉट सर्टेन, बट आर्कियोलॉजिस्ट हैव ऑल्सो ट्राई टू आइडेंटिफाई द टूल्स यूज फॉर हार्वेस्टिंग। अब किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? क्या कुदाल का इस्तेमाल करते थे? क्या वो लोग प्लॉ का इस्तेमाल करते थे? सो डिड हड़प्पन्स यूज द स्टोन ब्लेड सेट इन द वुडन हैंडल्स और डिड दे यूज मेटल टूल्स? क्या वो वुडन हैंडल्स का इस्तेमाल करते थे, स्टोन टूल्स का इस्तेमाल करते थे? सो देयर आर मेनी क्वेश्चन अबाउट विच वी आर अनअवेयर। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका उत्तर आज भी हमारे पास नहीं है। सो मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड वेयर इरिगेशन वॉज प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। अगर हम हड़प्पन साइट्स की बात करें तो वो सेमी एरिड लैंड में है। देखिए, सेमी एरिड लैंड का मीनिंग होता है ऐसा रीजन जहाँ पे ज़्यादा बरसात होती है और ना पर ज़्यादा सूखा पड़ता है। तो ज़्यादा हड़प्पन साइट्स हमें ऐसे ही इलाकों में दिखाई देती है जहाँ पर इरिगेशन चाहिए होता है अगर आपको एग्रीकल्चर करना है। ऐसा नहीं है इन रीजन्स में आप बिना इरिगेशन के सोर्स के आप कल्टीवेशन कर लेंगे। तो इन रीजन्स में इरिगेशन इंपॉर्टेंट था। तो कैसे वो इरिगेशन सप्लाई को इंश्योर करते थे, ये एक बहुत क्वेश्चन है हमारे दिमाग में। तो हमें कैनाल्स के ट्रेसेस मिलते हैं, यानी अब आप कैनाल्स, मुझे उम्मीद है आप समझते होंगे, लेकिन आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन यू। canals, suppose this is a source of the water, this is a lake or whatever it is, and sometimes तो underground canals are found basically। तो वहाँ से काट के एक नाला, या कह सकते हैं आप एक कैनाल, यहाँ से एक सोर्स ले लेते हैं वाटर का। और कभी कभी क्या होता था कि ज़्यादा बहाव के कारण कैनाल में पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। यू विल स्टडी दिस अबाउट इन इंपीरियल कैपिटल विजयनगर। वहाँ के ड्रेनेज सिस्टम के बारे में आप जब स्टडी करेंगे दैन यू विल कम टू नो। मान लीजिए रिवर है, तो आपने यहाँ इसका जो पानी है यहाँ पे स्टोर कर लिया एक, ठीक है। अब आप यहाँ से काटेंगे नाला, और इस पानी, ये जो पानी है इस नाले से या फिर पाइप से आप जो भी करेंगे, तो यहाँ से आपका पानी जो है आपकी फील्ड तक आप ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे, यानी सप्लाई कर पाएंगे। तो कैनाल्स के हमें कुछ अवशेष यहाँ पर मिलते हैं जो कि हमें शोर तो गाई, जो कि अफगानिस्तान में, क्योंकि हमने बात की है जो सभ्यता थी अफगानिस्तान तक फैली थी। सो हमें कुछ अवशेष मिलते हैं कैनाल्स के, जो कि पंजाब और सिंध में नहीं मिलते। अब इससे हम क्या इंटरप्रेट करें कि कैनाल्स के एविडेंसेस अफगानिस्तान में है लेकिन पंजाब और सिंध में नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि समय के साथ कैनाल्स के जो ट्रेसेस हैं वो बहुत समय के बाद सिल्ट हो जाते हैं, दैट वो सिल्ट हो गए होंगे बहुत टाइम के बाद, क्योंकि सिविलाइजेशन बहुत पहले एग्जिस्ट करती थी, तो शायद आज वो अवशेष ना रहे हों। तो ऐसा भी हो सकता है कि शायद जो वाटर जो था वेल से, उसका इस्तेमाल किया जाता हो, यहाँ पर वेल एक इंपॉर्टेंट सोर्स हो वाटर का। और शायद ऐसा भी हो सकता है कि जो धोला, बिसाइड अब हमें वाटर रिजर्वर मिलता है एक जगह, यानी वाटर को रिजर्व करने के लिए हमने रिजर्वियर बना रखे थे, जो कि हमें धोलावीरा से मिलता है। यहाँ से यू कैन गेट द क्वेश्चन कि वाटर रिजर्वियर कहाँ मिला था, तो धोलावीरा गुजरात में मिला था, ठीक है। नाउ एक इंपॉर्टेंट सोर्स हमारे सामने आता है कि हाउ द आर्टिफैक्ट आर आइडेंटिफाइड, कैसे वो आइडेंटिफाई करते थे, क्या स्ट्रैटेजीज होती थी कि आइडेंटिफाई करने का कि ये टूल है, ये इस काम के लिए इस्तेमाल होता है। तो हम एक आर्कियोलॉजिस्ट एक स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हैं, जैसे हम बोलते हैं नोन से अननोन। जिस चीज़ को वो जानते हैं उससे वो अननोन की तरफ मूव करते हैं। मान लीजिए कि अगर आज आपको कहीं पर
एक मटका दिखाई दे, आप उससे क्या इंटरप्रेट करेंगे? आप उससे इंटरप्रेट करेंगे शायद इसमें पानी भरने का इस्तेमाल आता होगा, इसमें कुछ चीज़ें इस्तेमाल करने के, तो आप जो चीज़ आप जानते हैं आप उससे उसे रिलेट करते हैं। अगर आपको कहीं से मैं कहूँ, आपको मान लीजिए आप एक प्लेस पे जाते हैं जहाँ पर आपको रंग बिरंगे कागज़ मिलते हैं, टुकड़े मिलते हैं, स्टोन्स मिलते हैं, तो आपको लगेगा शायद ये क्राफ्ट के इस्तेमाल में होता है जो आप जानते हैं। मान लीजिए सपोज वन मोर थिंग, आप एग्जाम्पल्स है जिसमें सोर्स बताया गया है, हमें यहाँ पर एक ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक सलबट्टा की तरफ दिखाई देता है, एक ऐसे दिखाई देता है और एक ये दिखाई देता है। तो प्रोबेबली वो क्या करते होंगे, इसके ऊपर ही घसीटते होंगे और जो भी इनके स्पाइसेस हो गए या एग्जाम्पल है हमारे पास स्पाइसेस, उन्हें इसके ऊपर करना, कड़ी पत्ता हो गया उन्हें इसके ऊपर घसीटना, आज भी हम इसके ऊपर घिसते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो शायद जो स्ट्रैटेजी वो इस्तेमाल करते हैं वो नोन से अननोन के इस्तेमाल करते हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे सलबट्टे दिखाई देते हैं। देखिए अगर सोर्स को स्टडी करें तो प्रोसेस ऑफ द फूड रिक्वायर्ड द ग्रिंडिंग इक्विपमेंट, अगर आपको फूड प्रोसेसिंग में आपको ग्रिंडिंग इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे फूड ऐसे होते हैं जिन्हें आपको ग्राइंड करना पड़ता है। Now these were made up of stone, metal and terracotta. Basically in this source I am telling you that basically they are trying to tell you that हमेशा वो जो चीज़ जानते हैं उससे अनजान की तरफ मूव करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर मुझे कहीं से, अगर हम हड़प्पन सिविलाइजेशन मिले तो हमें कहीं से अगर कैनाल के ट्रेसेस मिले हैं तो हम उसे आज के कैनाल से ट्रेस करेंगे जिसका हम आज इस्तेमाल करते हैं, कि हाँ कि आज हम इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए कर रहे हैं, तो शायद वो लोग भी इसका इस्तेमाल इरिगेशन के लिए ही करते हैं। वी आर गोइंग फ्रॉम नॉन टू अननोन, जो हम नहीं जानते उससे हम अनजान की तरफ जाते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। नाउ वी आर कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज मोहनजोदाड़ो, अ प्लान्ड अर्बन सेंटर। तो बेसिकली हड़प्पा जो है और एक मोहनजोदड़ो, दे आर द मेजर इंपॉर्टेंट सिटीज़ कहूँ, टाउन कहूँ, इस सिविलाइजेशन के थे। अब हड़प्पा जो था उसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि क्या वहाँ का ड्रेनेज सिस्टम रहा होगा, क्या वहाँ का बेसिकली वहाँ की रोड्स रही होंगी, कैसा सिस्टम वहाँ पर रहा होगा। लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में हमारे पास अबंडेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि हड़प्पा बेसिकली ओल्डेस्ट साइट है, जो कि आज बेसिकली अगर हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में कि कैसे आज हड़प्पा उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में वो एग्जिस्ट करता होगा। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स रहे जिसकी वजह से हड़प्पा जो है आज अपनी उस भव्य, उस ग्लोरियस फॉर्म में नहीं है। लेकिन मोहनजोदड़ो के बारे में आज भी बहुत सारे स्ट्रक्चर वेल प्रिजर्व्ड हैं, तो मोहनजोदड़ो इज अ वेल प्रिजर्व्ड साइट। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज़ द ओल्डेस्ट साइट, देन द आंसर विल बी हड़प्पा। तो इट इज जिस सिविलाइजेशन है हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसे नेम किया गया आफ्टर दिस रीजन हड़प्पा। नाउ कम टू द मोहनजोदड़ो। तो यूनिक फीचर ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज डेवलपमेंट ऑफ अर्बन सेंटर्स। यहाँ पर आपको अर्बन सेंटर्स दिखाई देंगे। अब व्हाट डू यू मीन बाय अर्बन सेंटर्स, हम क्या समझते हैं जब हम अर्बन सेंटर वर्ड के बारे में सुने? सो अर्बन मीन्स जहाँ पर एक इंटरडिपेंडेंस होती है। आपने ये स्टडी इन प्रीवियस ईयर, दैट इज क्लास 11 चैप्टर मैं राइटिंग इन सिटी लाइफ, जहाँ पर आपने देखा था कि अर्बनाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। अर्बनाइजेशन में हमेशा इंटरडिपेंडेंस होती है एक दूसरे के ऊपर, जहाँ पर ट्रेड फ्लरिश करता है, जहाँ पर लोगों की जो सोशल थिंकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न होती है, वो होता है शहर। जहाँ पर आपको बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई दे, बिल्डिंग्स दिखाई दे, वेल प्रॉपर सिस्टम दिखाई दे, दैट इज़ द अर्बन सेंटर। तो मोहनजोदड़ो एक वेल डेवलप्ड अर्बन सेंटर था। तो इसके बारे में हम देखेंगे, it's the most well known site, but the first site to be discovered was Harappa. Keep this thing in mind, it's a well preserved one, but Harappa was the oldest one. Now this settlement is divided into two sections, one smaller but higher and the other much larger but lower. Now if we look at the settlement, how the people used to settle here, then if I try to explain you by drawing a diagram, that is like that. This is a lower town, and above it you will find the evidences of a citadel. Now you can see from here that is the lower town is spread over a large area, but it is not very higher, but I will try to extend it, but this part is occupying a very less area, but it is a very at a great height. So this is called the above part is called citadel, and the bottom one is called lower town. So for now it is, I'm leaving here and I will explain you. The next part will come very soon, and I will try to explain you in the best possible manner as I can. And thank you for now. If you have understood something, then